Praise the Lord, Mahesh. Praise the Lord, Ashish. Praise the Lord, Joseph. Praise the Lord. Praise the Lord, Ajay. Praise the Lord, Sister Suvarna. Praise the Lord, sweetie. Praise the Lord, brother. Chandan, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Yes, Kunal, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Sagar, praise the Lord. Praise the Lord, Rani. Praise the Lord, Brother Vijay. Praise the Lord. Hallelujah. Wonderful Lord. Is the audio clear? Praise the Lord, Aarti. Praise the Lord. Is the audio clear? Can anybody comment and tell me the audio is clear? Praise the Lord, Brother Samson. Okay, thank you, Ajay. Okay, praise God. Thank you. Wonderful. Hallelujah. Okay, thank you so much. Thank you so much. Praise God. We worship you. Okay, thank you. Thank you for your response. Thank you. Praise God. So if you're watching, what I want you to do is if you can share it on your Facebook. Okay, thank you. Thank you for your response. Thank you so much. So what I want is if you can share this thing, share on your, यदि आप share कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा. Now many people will watch and will be blessed. Yes. Amen. Praise God. Yes, I believe that you have done the sharing. मैं विश्वास करता हूँ कि आपने share किया है. Thank you so much. Thank you so much. Praise God. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. God is wonderful. God is wonderful. God is wonderful. Praise God. Even at this lockdown time, lockdown होने के बावजूद, we are little busy. Praise God. इस लॉकडाउन में भी परमेश्वर ने हमें खाली नहीं रखा और परमेश्वर में उसके वचनों में हम बढ़ रहे हैं. मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ. खुदा हमको इन बातों में बढ़ा रहा है. हालेलुया. Hallelujah. We will be more busy than ever. Amen. हम लोग पहले से ज़्यादा और व्यस्त होने जा रहे हैं. व्यस्त हो गए हैं और इससे भी ज़्यादा हम लोग. Amen. Amen. Yes, thank you for your response. Yes, if you respond, it will be encouraging to me. और यदि आप respond करेंगे तो मुझे ये समझ में आएगा कि आप लोग सुन रहे हैं और आप लोग का रिस्पॉन्स मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा. So we are going to be much more busy. हम लोग और ज़्यादा व्यस्त है और भी आने वाले दिनों में हम और व्यस्त होने जा रहे हैं. Yes, praise the Lord, Sister Jyoti. Praise the Lord. Praise the
लॉर्ड। खुदा का मैं धन्यवाद करता हूँ फिर एक बार ये सुंदर समय परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया है। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर भला है और वो हर समय हमारे जीवन में भलाई को करना चाहता है। Every time God does good things in our life, He is always good. परमेश्वर हर समय भलाई को हमारे जीवन में करता है। Hallelujah. Unexpected, glorious things we are going to experience this year. इस वर्ष हम जो अपेक्षा नहीं किए ऐसे अद्भुत आशीषों को हम यीशु के नाम में इस वर्ष हम अनुभव करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये महिमा का वर्ष होकर हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया। We worship you, Lord. For there is none like you, Jesus. There is none like you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह। Bless Pastor Praveen Garu. Praise the Lord. Praise the Lord. Thanks for joining us. We're going to experience glorious things. Praise the Lord, Pastor Praveen Garu. Hallelujah. Thanks for joining. Hallelujah. Hallelujah. Wonderful, wonderful. Our God is amazing. Our God is glorious because He has promised us. क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर ने जो कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु परमेश्वर के वचन परिपूर्ण होंगे। परमेश्वर का वचन नहीं टलता। जो परमेश्वर ने हमें कहा, जो बातें इस वर्ष हमारे लिए खुदा ने दिया है, मैं निश्चय विश्वास करता हूँ that we are going to see amazing and glorious Sakatarama Lekondarama. We are going to see glorious things in the name of Jesus. Hallelujah. Rabau Shadarama Handare Ginderi Andalabo Shandarabaraba Hondarabandari Kandarabo Shandari Alaraba. Because God has kept us. जैसे परमेश्वर ने यशाया उसके 60वें अध्याय पहले दूसरे तीसरे आयत में जैसे हमने पढ़ा और जैसे परमेश्वर ने उन बातों को हमारे लिए दिया है। यशाया उसका 60वां अध्याय या पहले दूसरे तीसरे आयत को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तो उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तुझ पर प्रकाश और महिमा, परमेश्वर की महिमा तुझ पर उदय हुआ है। Amen. The glory of God is upon our lives. Hallelujah. Hallelujah. हम वास्तविकता को देखकर हम फ्यूचर को हम लोग निर्णय नहीं करेंगे, लेकिन हमारा फ्यूचर ऑलरेडी परमेश्वर ने सिक्योर्ड है और हमारा फ्यूचर अद्भुत है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। रामा को शाकाता रामांदरी अंदलाबा दीग्रो मकालेब्रो माशांदरी अंदलाबा। जो बातें अब तक हमने देखा ही नहीं, अब तक जो बातें हमने सुना ही नहीं, ऐसे अलौकिक और अद्भुत बातें यीशु मसीह के नाम में हम अनुभव करने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं। हालेलुया। We are going to see glorious things. We are going to see glorious things. What we have never seen. What we have never seen. जो हमने कभी भी नहीं देखा, ऐसे कार्य Hallelujah. God is going to do through you. जो भी परमेश्वर के करीब, जो भी परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनके लिए, जो उससे प्रेम करते हैं, उनके लिए जो कुछ उसने रचा, जो कुछ उसने उनके लिए योजना बनाया, वो भलाई की है। God is going to turn everything into good, into wonderful things. Hallelujah. परमेश्वर हर बातों को अद्भुत रीति से बदलने जा रहा है। Amen. If you believe, you can respond. Hallelujah. यदि आप विश्वास करते हैं तो आप रेस्पॉन्ड करें। Faith speaks. विश्वास बोलता है। हालेलुया। विश्वास को हमें क्रिया में करना है। Praise the Lord. Hallelujah. We cannot be silent and we cannot expect God to do something. हम शांत रहकर परमेश्वर के कार्यों को हम अनुभव नहीं कर सकते प्रियो। Hallelujah. No silence now. No silence. No silence. We are going to raise our voice more louder than before in Jesus' name. इससे भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा हम अपनी आवाज को ऊंचा उठाने जा रहे हैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। Amen. Faith speaks. Amen. Amen. विश्वास क्रिया में हम दिखाए, विश्वास बोलता है। हालेलुया। विश्वास शांत नहीं रहता, विश्वास मन में आमीन नहीं कहता, परंतु विश्वास
विश्वास क्रिया में दिखता है हमारे जीवन में। Praise the Lord. Yes, I need your response. I need your response. We need to receive it by faith. हम विश्वास से इन बातों को हम अंगीकार करें। Praise the Lord. 7वां अध्याय यशायाह उसका 7 उसके पहले दूसरे तीसरे आयत में यदि हम पढ़ेंगे, Arise shine, यशायाह 7वां अध्याय पहला दूसरा और तीसरा आयत, Arise shine, for thy light is come and the glory of the Lord has risen upon thee. Hallelujah. उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। You are the light. We are the light in Jesus' name. Those who believe in God's word are the light in Jesus' name. जो भी प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करते हैं, जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो प्रकाश है। परमेश्वर कह रहा है, और यहोवा का तेज, तेज मतलब यहोवा की महिमा ऊपर, तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। God's glory, परमेश्वर की महिमा हम पर है और हम निराश रहेंगे? कभी नहीं। परमेश्वर की प्रकाश हमारे जीवनों पे है और हम अंधकार में रहेंगे? कभी भी नहीं। Never. Hallelujah, amen. Yes, we are the light of this world. हम इस संसार में परमेश्वर ने हमें प्रकाश होकर रखा और परमेश्वर की महिमा मतलब ये कोई साधारण बात नहीं है प्रियो। Hallelujah. This is not an ordinary thing. If God is saying that my glory is upon your life, यदि परमेश्वर कह रहा है कि मेरी महिमा मैंने तुम पर रखा, तो ये कोई साधारण बात नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहन। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई साधारण बात नहीं है कि यदि परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवनों में है और हम निराशा की बातें करेंगे और हम भय की बातें करेंगे। नो, इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। ये कभी नहीं होगा। रिकला मकालियंदरबो शंदरिकंदरबा, वी आर द लाइट इन दिस वर्ल्ड। हम इस पृथ्वी पर, परमेश्वर ने इस जगत में हमें प्रकाश और उजियाला होकर रखा है। कम ऑन, कन्फेस इट। बोलिए यीशु के नाम में, अंगीकार कीजिए कि मैं इस जगत की रोशनी हूँ। परमेश्वर ने मुझे इस जगत पर ज्योति होकर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मेरी तेज, मेरी महिमा, मेरा प्रकाश तुम पर उदय हुआ है। दिस इज द प्रॉमिस दैट गॉड हैज गिवन दिस ईयर। इस वर्ष के लिए परमेश्वर ने ये बातों को दिया। दिस इज द ईयर ऑफ ग्लोरी। 2020 हमारे लिए ये महिमा का वर्ष है। हालेलुया। वी आर गोइंग टू ग्रो like never before. Rikom daraba shandara handari antaraba riklo makali andarabo shandali handari andaraba। पहले से भी कहीं अद्भुत रीति से हम परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के कार्यों को हम अनुभव करने जा रहे हैं। हालेलुया। वी आर नॉट ऑर्डिनरी। हम साधारण नहीं है, हम असाधारण लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। For behold, दूसरे आयत में हम लोग देखेंगे, For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and His glory shall be seen upon thee. Hallelujah. देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। Come on, somebody. Rikom daraba, shekala bala duriyam daraba. If you have your Bibles, read the scripture. यदि आपके पास बाइबल है, मैं चाहता हूँ कि आपके ध्यान आपके परमेश्वर के वचनों पर आप लेकर जाए। उसका दूसरा आयत, हालेलुया, दूसरा आयत। देखो, देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। हेलो, हालेलुया। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर, हालेलुया, कलामा शांदारे बे रेकुंदाराबा संबरी उरामा सेक्रो मकालियम दाराबा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने इस वर्ष के पहले ही हमें उन सारी बातों को दे दिया जो हमें जरूरत थी। प्रेज द लॉर्ड। Whatever we need, जो भी हमारी आवश्यकता थी, खुदा ने शुरुआत में ही हमें दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। You know, this is the present situation. ये अभी वास्तविकता है, अभी वास्तविक परिस्थिति सारे पृथ्वी पर है। Amen. Yes,
आमेन। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद देखिए, ओ राबा शाटा रेखे बेरियंदा राबा, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। हालेलुया, राबा शंदारियंदा राबा लीक्रो मकालेब्रो मो शंदारियंदा राबा, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, कम ऑन रिसीव इट इन जीसस नेम। यीशु के नाम में उन बातों को ले लीजिए। हालेलुया, अंगीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या परमेश्वर क्या कह रहा है? परंतु तेरे ऊपर राज्य में घोर अंधकार है, घोर अंधकार, लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। हालेलुया, रामा शाकारियंदा रामा लेक्रो मकारियंदा रामा। ओ अंगीकार कीजिए, आई एम द ग्लोरी ऑफ गॉड इन जीसस नेम। मैं परमेश्वर की महिमा हूँ यीशु के नाम में। मैं परमेश्वर की महिमा हूँ यीशु के नाम में। मैं परमेश्वर की महिमा हूँ। हालेलुया, आई एम द ग्लोरी ऑफ गॉड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज मतलब महिमा, उसकी महिमा तुझ पर प्रकट होगी। हालेलुया, हालेलुया। उसकी महिमा मुझ पर प्रकट हुई है यीशु के नाम में। बिकॉज वी आर द ग्लोरी ऑफ गॉड, वी आर अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग, क्योंकि हम पर परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई है और हम इस अंधकार में परमेश्वर ने हमें प्रकाश होकर उसकी महिमा को हमारे जीवनों पर रखा है। हालेलुया, वी आर नॉट ऑर्डिनरी। उसके बाद में तीसरा आयत, ओ का नामा शानदारियाला, व्हाट अ वंडरफुल वर्ड्स। कितना महान है हमारा परमेश्वर। ओ हालेलुया, ही नोज एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। वो अल्फा, वो ओमेगा है, वो प्रारंभ में ही वो अंत को जानने वाला परमेश्वर है। यस, वी आर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आमेन। कन्फेस इट, कन्फेस इट, कन्फेस इट इन द नेम ऑफ जीसस। अंगीकार कीजिए यीशु के नाम में कि मैं परमेश्वर की महिमा हूँ। आमेन, हालेलुया, hallelujah. And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of the rising. Siba raba raduri kandale henderia taraba. Hallelujah. और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। रोको नमा शंदुरी कंदरबा लीक्रो मकारियंदरबो शंदरियंदरबा। Hallelujah, hallelujah. This is a prophetic word that God has given this year. ये वचन परमेश्वर ने भविष्यवाणी होकर परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। Hallelujah. In these dark times we are shining with the glory of God. इन अंधियारा, जो अंधियारा सारे पृथ्वी पर राज्य पर अंधियारा छाया हुआ है और लोगों पर अंधियारा छाया हुआ है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, मेरे प्रिय भाई और बहन, आप पर, आपके जीवन पर। हालेलुया। That's why I want you to share this thing. इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने जस्ट शेयर करें, ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो लोग आशीषित हो सके। हालेलुया। जस्ट शेयर ऑन योर फेसबुक। शका रामांदुरियंदालाबा लीक्रो मकालियंदारबो। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोग अज्ञानता के कारण नाश हो रहे, क्योंकि उन्होंने मेरे वचन को तिरस्कार किया। इफ यू रिसीव हिज वर्ड, इफ एनीबडी रिसीव्स हिज वर्ड, जो भी व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को यदि वो स्वीकार करेगा, यदि परमेश्वर के वचनों को वो अंगीकार करेगा, यदि परमेश्वर के वचनों पर वो विश्वास करेगा, come on, he's going to see the glory of God in his life. Hallelujah. You can be anybody. आप कोई भी हो सकते हैं। हालेलुया। आप कहीं से भी देख रहे होंगे, आपका जीवन कैसा भी होगा, आप कोई भी हो सकते हैं। When you receive his word, when you believe the word which God is giving to you, जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो, हालेलुया, जब आप परमेश्वर के वचन को विश्वास करके अंगीकार करते हो, वहां पर एक अद्भुत कार्य होता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। whenever जब भी परमेश्वर ने सेवक को, बाइबल में हम लोग कई घटनाओं को देखते हैं, जब भी परमेश्वर ने अपने दास को बातों को दिया, जब उन्होंने विश्वास किया, तो परमेश्वर ने एक अद्भुत और आश्चर्य कार्य को किया। हालेलुया। वी हर्ड अबाउट अब्राहम। हमने अब्राहम के बारे में पिछले हफ्ते सुना।
कि उसने अविश्वास नहीं किया, परिस्थितियों को देखकर उसने अविश्वास को नहीं किया, वो अविश्वास उसके जीवन में कार्य करने नहीं दिया, परंतु उसकी परिस्थितियों को, वास्तविकता को देखकर भी उसने जो परमेश्वर ने कहा उसके वचन पर अब्राहम ने विश्वास किया, और जैसे विश्वास किया वैसे ही उसने अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों को अनुभव किया। मेरे प्रियो, हालेलुया, दैट इज व्हाट आवर लाइफ इज ऑल अबाउट। ये मसीह जीवन वही है। हालेलुया, वी बिलीव गॉड्स वर्ड, गॉड हैज गिवन, जो परमेश्वर ने जो वचन को दिया। तीसरे आयत में पहला, दूसरा और तीसरा वचन हमने पढ़ा, और तीसरे आयत में लिखा गया है, और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। रामा शांदारा हंदारी अंदाराबा, हालेलुया, कुरामा शाबारा बांदुरी कंदारी अंदाराबा। से आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द ग्लोरी ऑफ गॉड। अंगीकार करे कि मैं इस जगत पर ज्योति हूँ, मुझे परमेश्वर ने प्रकाश होकर रखा है, परमेश्वर ने मुझे महिमा होकर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। लोग इस समय में इस वास्तविक परिस्थिति के अनुसार पर लोग हमारी ओर देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। गॉड, पीपल आर गोइंग टू लुक एट यू। लोग आपकी ओर देखेंगे, उन्हें प्रकाश के लिए लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि स्पष्ट तीसरा आयत कहता है कि अन्य जाति तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगे। हालेलुया, राजाए तेरे पास आएंगे, राजाए हमारे पास आएंगे, अधिकारी हमारे पास आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, ये प्रकाश के लिए वो आएंगे। वी आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। रबो शबारा हंदरी कंदाराबा, रिक्लो मकाली अंदरबो शंदरी अंदरबा। इसके लिए अगर ये बातें हमारे जीवन में हम देखना चाहते हैं, यदि हम ये बातों को हमारे जीवन में प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं, हालेलुया, सो वी नीड टू डू फ्यू थिंग्स। हमें कुछ बातों को करना जरूरी है। यदि ये वचन हमारे जीवन में कार्य होते हुए हम देखना चाहते हैं, if we want to see these things reflecting through your life, यदि आप देखना चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का प्रकाश मुझ में हो, तो आपके जीवन में परमेश्वर के वचन को फर्स्ट प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकाश है। The God's word is light. Hallelujah. परमेश्वर का वचन प्रकाश है, और परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। You need to prioritize the God's word in your life. You need to believe God's word. आपको वचन पर विश्वास करना जरूरी है। आपको ये अंगीकार करना जरूरी है कि जो भी परमेश्वर का वचन कहता है, जो भी खुदा का वचन कहता है, I believe that word. Whatever my situation may be, मेरी परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन मेरा विश्वास खुदा के वचनों पर है। वो जो कहता है, हालेलुया, रबा शंदरी अंदरबा, लिब्रो मकाली अंदरबो शंदरी कंदरमा, दीबा रबा रबा शबरा बरा दुरियंदरबो शकरी कंदरबो अंदरकरी अंदरबा। Hallelujah. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. जो धर्मी है, हालेलुया, उनका जीवन, नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 18वां आयत, नीति वचन 4:18। But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day। मैं आपके लिए मैं हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन 4 अध्याय उसका 18वां आयत। Hallelujah. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। हालेलुया, वी आर द राइचियस पीपल ऑफ गॉड। हम धर्मी हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, उस पर विश्वास करने के द्वारा, उसके वचनों पर विश्वास करने के द्वारा हमें परमेश्वर ने धर्मी होने का अधिकार दिया। हमें उसने धर्मी होकर हमारे जीवन को बदल दिया। हालेलुया, He made us righteous। और धर्मी का जीवन कैसा रहता है, यहाँ पर हम लोग पढ़ सकते हैं नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 18वां आयत। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक
बढ़ता रहता है। हालेलुया राबा शोकोली अंदरबो शंदरबा लेक्रो मकाली अंदरबो शंदरी अंदरबा। Our light is going to shine more and more in the mighty name of Jesus। हमारा प्रकाश, हमारे अंदर जो प्रकाश है वो और अधिक 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 चमकता जाएगा यीशु के नाम में। It's not going to stop anywhere। वो कहीं पर भी नहीं रुकेगा। हालेलुया। कब रुकेगा? जब आप उसे रोकना चाहेंगे। हालेलुया। और ये भी बातें मैं बताऊंगा कि कैसे हमें क्या करना है। वो यदि वो महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो, यदि वो प्रकाश हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो, तो हमें परमेश्वर के वचनों में बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। When you are rooted and grounded in God's word, जब आप परमेश्वर के वचनों में रोपे जाएंगे, जब आप परमेश्वर के वचनों में आप आपके जीवन को परमेश्वर के वचनों में स्थापित करोगे, तो वो परमेश्वर का प्रकाश आपके अंदर से प्रकट होते जाएगा। परमेश्वर की महिमा आपके अंदर से प्रकट होता जाएगा। हालेलुया। There is no other way, I'm telling you, for a believer to shine is through obeying God's word। एक विश्वासी के लिए और कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है। कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है। कोई भी और शॉर्टकट विश्वासी के लिए नहीं है। यदि आप परमेश्वर में, जो परमेश्वर का वचन कहता है, आप अधिक 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 चमकना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को अधिक अपने जीवन में लेते जाए। अधिक अधिक परमेश्वर के वचनों को अंगीकार करते जाए। अधिक 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 वास्तविकताओं पर नहीं, परिस्थितियों को देखकर कुछ बोलना नहीं, लेकिन अधिक से अधिक खुदा के वचनों को अंगीकार करते जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। Hallelujah. That's how you're going to shine more and more. The more brighter you're going to get. Hallelujah. और अधिक अधिक जैसे आप वचन में बढ़ते जाओगे, हालेलुया, जैसे आप वचन में स्थापित होते जाओगे, आपका जीवन और प्रकाशमान होते जाएगा। हालेलुया। You know, आप जब घर में एक ट्यूबलाइट को लगाते हैं, तो वो आपके घर में एक रूम के लिए सीमित रहेगा। वो लाइट, वो प्रकाश, राइट। तो आप घर के लिए उतना ही लगाओगे जितनी वहां पर आपको जरूरत है। तो वो ट्यूबलाइट को आप यदि बाहर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो बाहर अगर आपको बहुत बड़े ग्राउंड में अगर लाइट चाहिए, तो वहां पर वो कार्य नहीं करेगा, बिकॉज इट्स कैपेसिटी इज लिटिल, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम है और वो आपके रूम को बहुत सुंदर प्रकाशमान करेगा। लेकिन यदि वही आपको बाहर के ग्राउंड में, यदि आपको बहुत ज्यादा अच्छा प्रकाश चाहिए, अगर बड़ी जगह पर आपको ज्यादा प्रकाश चाहिए, तो आपको बड़ा फ्लड लाइट लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार जितना आप चमकना चाहते हैं, इट इज इन योर हैंड, इट इज नॉट इन गॉड्स हैंड। हेलो, हालेलुया, इट्स इन योर हैंड। The more you believe God's word, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करोगे, जितना ज्यादा आप उस वचन पर स्थापित होते जाओगे, उतना ज्यादा उतना आप प्रकाशमान होते जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। We are going to shine and we are going to cover the city of Chandrapur in the mighty name of Jesus. We are going to cover the state of Maharashtra. We are going to cover our nation India by this light in the mighty name of Jesus. We are going to cover different nations by this light in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Come on, receive it, church. ये प्रकाश के द्वारा हम चंद्रपुर में प्रकाशमान होने जा रहे हैं, या हम प्रकाश इस चंद्रपुर शहर में हम उस प्रकाश को प्रकट करने जा रहे हैं। केवल चंद्रपुर शहर में नहीं, संपूर्ण महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत देश में, केवल भारत देश में नहीं, अलग अलग देशों में। हालेलुया। हम इस परमेश्वर की प्रकाश हमारे जीवनों के द्वारा, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, रबा लेबे लेबे शांदारी, इट्स गोइंग टू शाइन थ्रू आउट द वर्ल्ड। रिक्रो मकाली अंदाराबो शांदारा हंडारी कराबासी कोरी अंदाराबा। द मोर यू वांट, आप जितना प्रकाशमान होना चाहते हैं, उतना परमेश्वर के वचनों से, खुदा के वचनों से, खुदा के कलाम से आप प्रेम करें। जितना उस पर आप विश्वास करोगे, उतना आप प्रकाशमान, आपका जीवन उतना प्रकाशमान होते जाएगा। पहले भी देखा यशुआ उसके पहले अध्याय 8वें वचन में और 9वें वचन में कहता है, तू बिल्कुल भी मत डर, तू जब इस वचन में खड़ा रहेगा, तेरे जीवन में जब वचन रहेगा, तू रात और दिन जब इस वचन पर मनन करता रहेगा, तेरा ध्यान जब इस वचन पर रहेगा, तो तू सफल होता जाएगा। केवल सफल ही नहीं, तू प्रभावशाली बनेगा। उसके बाद में 9वें आयत में देखते हैं कि तू
डरने की तुझे कोई जरूरत नहीं रहेगी। कब हम नहीं डरेंगे? जब खुदा का वचन हमारे जीवन में रहेगा। हालेलुया। नॉट विद दिस वर्ल्ड, नॉट विद द एसेट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। संसार में कितना भी आपके पास रहे वो आपको कमी लगेगा। यस, एज ए ह्यूमन, जब एक मनुष्य के तरीके से हम सोचेंगे कितना भी रहेगा तो हमें लगेगा कि और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। वी वांट मोर एंड मोर इन दिस अर्थ। हमें लगेगा कि और ज्यादा हमें चाहिए, और ज्यादा हम लोग पाना चाहेंगे। हालेलुया। But through that the light is not going to shine. जो भी परमेश्वर ने दिया है, कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 16वें वचन के अनुसार, क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों पर डोंट होल्ड ऑन एनीथिंग फॉर गॉड। कोई भी बातों को अपने जीवन में पकड़े मत रखिए। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी बातों को पकड़ कर मत रखिए। यदि परमेश्वर कहता है तो वो बातों को परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। एवरीथिंग शुड बी यूज्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हमारे जीवन में जो भी है, हमारे जीवन में जो कुछ, एवरीथिंग, आवर टाइम, आवर टैलेंट्स, हमारा समय, हमारे जीवन में जो भी टैलेंट्स प्रभु ने दिया, हमारा ट्रेजर, परमेश्वर ने जो धन हमें दिया, कम ऑन, यूज इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करने का समय है प्रियो। हालेलुया। फेथ स्पीक्स, फेथ हैज एक्शन। विश्वास बोलता है, विश्वास में क्रिया जरूरी है। हालेलुया। विश्वास में क्रिया जरूरी है। यदि हम बोलेंगे मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूं और हम परमेश्वर को देंगे नहीं, हम आशीषित नहीं होंगे। मैं परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं लेकिन मेरे पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है। मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूं, प्रभु के वचन के लिए मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है। नो, दैट इज नॉट द ट्रू लव। वो सच्चा प्रेम नहीं है। वो सिर्फ आप शब्दों में कह रहे हैं। सिर्फ शब्द में यदि कहेंगे, दैट इज नॉट फेथ। यदि सिर्फ शब्द में हम लोग वो बातों को करेंगे, वो विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास में क्रिया जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। वी नीड टू पुट दोस थिंग्स इनटू एक्शन। वी नीड टू गिव आवर टाइम। हमें हमारे समय को परमेश्वर को देना बहुत जरूरी है। हमें जो भी हमारे जीवन में एवरीथिंग, every talent that you have, जो टैलेंट आपके पास खुदा ने दिया है, जो समय खुदा ने आपको दिया है, जो भी बातें परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है, come on, use it for the glory of God. उन बातों को परमेश्वर की महिमा के लिए मेरे प्रियो इस्तेमाल करें। come on, rise up. हालेलुया। जैसे यशायाह हमने पढ़ा वहां पर, उठ, प्रकाशमान हो, rise up from that dead things. उस स्थिति से खड़े हो जाओ, उठो अब। हालेलुया। उस परिस्थिति से जहां पर आप इतने समय तक फंसे थे, जहां पर आप सोच रहे थे कि ये सब कुछ मेरा है, come on, nothing is going to work in this world but only the power of God. हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का वचन इस पृथ्वी पर कार्य करेगा। हालेलुया, in the name of Jesus. रेकोंदारामा शांतरियंदारामा, don't hold on to the earthly things. जैसे पिछले हफ्ते हमने सुना कि let's focus on the heavenly things if we love God. यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि खुदा का वचन हमारे जीवनों में है, तो निश्चय जो भी परमेश्वर कहेगा वो बातों को छोड़ने के लिए हम तैयार रहेंगे। प्रभु के राज्य के लिए वो बातों को करने के लिए हम तैयार रहेंगे। हालेलुया। Let everything of our life, let it be used for the glory of God. जो भी हमारे जीवन में है, जो भी हमारे जीवन में है, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो, don't worry about any situation, because the word of God says so. क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस संसार में तुम्हें क्लेश आएंगे, परिस्थिति आएंगे, there will be temptations and there will be trials, but don't worry, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, because I have overcome the world. क्योंकि मैंने इस संसार पर जय को पाया है। हालेलुया। When Christ is in you, the same victory is working in you. जब मसीह यीशु आपके जीवनों में है, वही जीवन, वही सामर्थ आप में भी कार्य कर रहा है। Hallelujah. You don't have to worry. You don't have to be scared by looking at the situations in this world. इस संसार की परिस्थितियों को, हालातों को देखकर आप जो परमेश्वर के संतान है, आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय भाइयों। Come on. Hallelujah. Let's give everything to God.
Let's love with everything that we have. Don't hold on. ये मेरा है, ये बातें मेरी है, इसको छोड़कर बाकी सब नो 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 नो। सारी बातें प्रभु, जो भी मेरे जीवन में, ये जीवन में जो भी है, सब कुछ तेरा है। हालेलुया, दैट्स द ट्रू लव। सब कुछ तेरा है। और विश्वास जब हम करते हैं तो विश्वास में क्रिया भी जरूरी है। डोंट होल्ड ऑन एनीथिंग माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर। कोई भी बातों को पकड़ कर मत रखिए, बिकॉज नथिंग इज गोइंग टू कम विद यू। हालेलुया, क्राइस्ट हैज गिवन अस अ लाइफ ऑफ अबंडेंस एंड अ लाइफ ऑफ इटर्निटी। मसीह यीशु ने जो जीवन लेकर आया, जो मसीह यीशु ने हमें जीवन दिया है, वो शाश्वत जीवन है। हालेलुया, वो बहुतायत का जीवन है। Nothing you can hold and you can take it. Only Jesus and the life which Christ has given, that is going to be there for eternity. जो मसीह आपके जीवन में है, और जो मसीह ने जो जीवन दिया है, वही शाश्वत समय के लिए रहेगा। हालेलुया। इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी ना करे और हम घर पे बैठे रहे। नो। Whatever God has given us the responsibilities, जो भी जिम्मेदारियां, जो भी परमेश्वर ने हमें दिया, उन बातों को हमें करना है। लेकिन the priority should be our God. हम जो कुछ करेंगे, जो भी जिम्मेदारियां है, whatever we have, whatever we are, जो भी हम हैं, जो भी हमारे जीवन में है, सब कुछ उस खुदा की महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। रामा शंदारी कलामा उरा खवाला दुरियंदा। वो जैसे पौलुस कहता है कि मैं इस संसार में सारी बातों को मैंने तुच्छ जाना है परमेश्वर के सामने। ओ हालेलुया, एवरीथिंग आई काउंट इट एज डंग कर कहता है पौलुस। कहता है कि मैंने इसे ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ये सब कुछ व्यर्थ है, ये सारी बातें व्यर्थ है मसीह के सामने। मसीह जो महिमा का जीवन मुझे दिया, ओ मसीह ने जो अलौकिक जीवन मुझे दिया, ओ मसीह ने जो सामर्थ्य जीवन, हालेलुया, द लाइफ ऑफ इटर्निटी, जो शाश्वत जीवन जो मसीह ने दिया, उसके सामने ये सब कुछ। आई डोंट काउंट एनीथिंग। मैं कोई भी बातों को मैं अपने जीवन में राबा सोचे रेखेंटेरिया लाबा, हालेलुया, मैं और किसी बात को परमेश्वर से ज्यादा मेरे जीवन में मैं स्थान नहीं देता हूं। हालेलुया। ओह कम ऑन, वी नीड टू राइज अप माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। मेरे प्रिय भाई और बहन, हमें प्रकाशमान होना जरूरी है। परमेश्वर और कुछ नहीं करेगा, परमेश्वर कुछ आकर करने वाला नहीं। डोंट वेट फॉर गॉड, डोंट वेट फॉर गॉड्स टाइम, नो द टाइम is in your hands. परमेश्वर कुछ करेगा, कल देखेंगे, अगले संडे को देखेंगे, लॉकडाउन खत्म होने के बाद देखेंगे। ओह नो, आई एम सॉरी माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। उस समय के लिए राह मत देखिए कि लॉकडाउन हो जाएगा, उसके बाद में मैं बहुत अच्छा प्रभु के लिए जीवन जीऊंगा। He doesn't want that. परमेश्वर को वो नहीं चाहिए कि आप कल और परसों या नरसों या लॉकडाउन के बाद या और कुछ समय के बाद मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, मैं प्रभु के लिए करूंगा। नो, God wants your obedience, and delayed obedience is disobedience. परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता को देखना चाहता है, परमेश्वर आपकी अधीनता को देखना चाहता है। हालेलुया। और यदि आप सोचेंगे कि मैं कल करूंगा, मैं परसों करूंगा, मैं अगले हफ्ते करूंगा, delayed obedience is equals to disobedience. यदि आप कल करेंगे, परसों करेंगे, इसका मतलब आप आज्ञाकारिता नहीं है, आप आदि नहीं है। और जब परमेश्वर के आप आदि नहीं रहोगे, जब परमेश्वर बोल रहा है, यदि आप आदि नहीं होंगे, तो परमेश्वर की आशीषों को आप अपेक्षा नहीं कर सकते। बिकॉज द टाइम इज इन योर हैंड। जो भी परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, He has given everything He has invested in you. परमेश्वर ने वो सब कुछ आपके अंदर इन्वेस्ट कर रख दिया है। He has already put everything into you. Hallelujah. Hallelujah. Everything He has kept invested in you. वो सब कुछ खुदा ने आपके जीवन में इन्वेस्ट कर दिया है। Hallelujah. You just need to bring it out through believing God's word. आपको परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हो, मैं प्रकाश हूँ, मैं परमेश्वर की महिमा हूँ, मैं परमेश्वर की धार्मिकता होकर परमेश्वर ने मुझे बनाया, मुझे उसने धर्मी होकर बनाया है। हालेलुया। We are not sinners. Come on somebody, rebo shatara. Hallelujah. We are not sinners.
He has purchased us with His blood. तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके पवित्र लहू से हमें खरीदा है। हम पापी नहीं, खुदा ने हमें धर्मी होकर बनाया। जो भी उस पर विश्वास करता, जो भी पश्चाताप किया, जो भी अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार किया, उसको परमेश्वर ने धर्मी होकर बनाया। हालेलुया। Not a sinner. You are the righteousness of God. प्रभु ने आपको धर्मी होकर बनाया। परमेश्वर ने आपको उसका बेटा होकर, बेटी होकर बनाया, ताकि इस पृथ्वी पर उसके राज्य को आप स्थापित करें, परमेश्वर के राज्य के कार्यों को आप करें, परमेश्वर के राज्य के कार्यों में आप सहमत होकर उन बातों में, अगर आप नहीं कर सकते जो कर रहे हैं, उनके साथ आप सहमत हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनके साथ में सहायक होकर आप खड़े रह सकते हैं। If you are not able to do, यदि आप नहीं कर पा रहे तो जो कर रहे हैं उनके साथ में खड़े रहिए। कल करेंगे, परसों करेंगे, नो नो, डोंट डिले नाउ माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर। और कल करेंगे, परमेश्वर के कार्य है, देखेंगे, आराम से करेंगे। नो, नाउ इट्स द टाइम। ये वो समय है, ये वो समय है कि आप प्रभु के करीब आए। आप परमेश्वर को, come on, just hold on to him, just cling to him। उससे लिपट जा, परमेश्वर को पकड़ ले कि प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ पिता। हालेलुया, I want to live for you Lord। मैं तेरी महिमा के लिए जीना चाहता हूँ खुदा, मैं तेरे राज्य की महिमा के लिए मैं जीना चाहता हूँ प्रभु, जो भी मेरे जीवन में है। हालेलुया, everything I'm going to use it for your kingdom। परमेश्वर का जो कुछ आपने मुझे दिया, सब कुछ मैं आपके राज्य की महिमा के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। रेको जाराबा शंदरिया लाराबा। Hallelujah। And don't do things according to your thinking. Don't do things according to as you think it is good. No, every good idea is not a God idea. Hallelujah, hallelujah। Every good idea is not a God idea। हर एक अच्छी विचार, आपको जो अच्छा लगता है वो परमेश्वर से नहीं है। यदि आप परमेश्वर के वचनों में रहोगे, यदि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आप रहोगे, तो पवित्र आत्मा आपको वो बातों को दिखाएगा कि परमेश्वर की योजना क्या है। Don't do anything what you like good। जो भी आपको अच्छा लगे, oh I feel this is a good thing so I do it। आपको क्या अच्छा लगता है उससे प्रभु की महिमा नहीं होगी। हेलो, हालेलुया। आपको क्या अच्छा लगता है उससे प्रभु की महिमा नहीं होगी। लिसन टू इट। आपको क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, ये अच्छी योजना है, ये अच्छा विचार है। मेरे अच्छे विचार परमेश्वर की महिमा नहीं करेगी। आपके अच्छे विचार, आपके अच्छे काम परमेश्वर की महिमा नहीं करेगी। क्या वो बातें परमेश्वर के उद्देश्य में है, ये जानना जरूरी है। हालेलुया। हाउ यू विल नो इट। कैसे हम पता करेंगे? खुदा के वचनों से। और दूसरा कैसा? हम जब प्रार्थना में समय को बिताएंगे और परमेश्वर के सेवकों के द्वारा परमेश्वर बात करेगा। जो भी कलीसिया में आप स्थापित है, उनके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। गॉड विल स्पीक टू यू थ्रू हिज वर्ड। परमेश्वर इसके वचनों से आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में रहेंगे, when you pray in the spirit, लिखरो माते रेबो शटारी अंदालाबा, not the prayer for asking God, ओ प्रभु आज के दिन को दिया, प्रभु मुझे सुरक्षित रख, मेरे परिवार को सुरक्षित रख, यीशु के नाम में प्रभु, आमीन। नहीं 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 नहीं, that is not enough। वो काफी नहीं है। हालेलुया। we need to grow, we need to grow, we need to grow। हमें उन बातों में बढ़ना जरूरी है। रिक्लो माला राबा शंडा राबा रेगोंडा राबा शंडा रे हेंडेरी खराबा संतुरियन राबा। We need to grow। हमें बढ़ना है। जीवन में हर क्षेत्र में हम जैसे बढ़ना चाहते हैं, जीवन की हर बातों में हम बढ़ना चाहते हैं। In everything we want to grow। Physically we want growth, mentally we want growth। मानसिक रीति से हम बढ़ना चाहते हैं, विचारों में हम बढ़ना चाहते हैं, बुद्धि में हम बढ़ना चाहते हैं, ज्ञान में हम बढ़ना चाहते हैं, आर्थिक बातों में हम बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ हम बढ़ना चाहते हैं। वैसे ही आत्मिक बातों में, खुदा के वचनों में, प्रार्थना में हमें बढ़ना जरूरी है। हालेलुया। We cannot stay from that same place for years। वही समय, वही बातों में सालों साल हम बिता नहीं सकते।
वही स्थिति में हम कहीं समय बिता नहीं सकते? वही प्रार्थना, वही सीमित जीवन? नो, जैसे हम बाकी बातों में बढ़ने की आशा रखते हैं, वैसे ही प्रभु में भी बढ़ने की आशा रखना जरूरी है। आशा ही रखना नहीं, उस विश्वास में क्रिया को भी लाना जरूरी है मेरे प्रिय भाई और बहन। एंड हु इज गोइंग टू डू इट? और कौन करेगा ये बातें? आपको ही करना है। हालेलुया, हालेलुया। यू नीड टू कनेक्ट टू द राइट पीपल। आपको सही लोगों से कनेक्ट होना जरूरी है यदि आप बढ़ना चाहते हैं। यदि आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, यू नीड टू कनेक्ट टू द राइट पीपल एंड बी ओबीडिएंट टू गॉड्स वर्ड, और परमेश्वर के वचन की अधीनता में रहे, सही लोगों से जुड़े और परमेश्वर के वचनों के अधीनता में बढ़े। हालेलुया। वेदर यू लाइक इट और नॉट, कई बार हमें अच्छा नहीं भी लगेगा, बट स्टिल इफ लॉर्ड यू से इट मे नॉट बी माय आइडिया, इट मे नॉट बी अ गुड आइडिया, बट इट्स अ गॉड आइडिया, आई नीड टू ओबे। हालेलुया। शाका रामांदुरिया तालाबा। हालेलुया। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जो प्रभु ने मुझे बोला, मुझे अधीनता होने में मुझे प्रसन्न नहीं हो रही, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये बातों को करने में। नहीं, मुझे क्या अच्छा लग रहा है वो बातें नहीं, प्रभु ये अच्छी विचार नहीं, ये परमेश्वर आपकी ओर से है और मैं अधीन होना चाहता हूँ। आई विल ओबे लॉर्ड। ओ रामा शेके टेरिया तालाबा। आई विल ओबे, आई विल ओबे। हालेलुया। यू नीड टू मेक अ चॉइस। आपको वो चुनौती को करना है कि प्रभु मैं अधीनता में आऊंगा, मैं अधीन रहूंगा प्रभु, प्रार्थना में मैं बढ़ूंगा, वचनों में मैं बढ़ूंगा। ये आपकी चुनौती है। नोबडी इज गोइंग टू डू फॉर यू, और कोई आपके लिए नहीं करेगा। जैसे अगर मुझे भूख लगती है तो यदि मेरी बेटी खाना खाएगी तो मेरा भूख नहीं मिटेगा। हो सकता है मैं बहुत ज्यादा उससे प्रेम करता हूं, हो सकता है पहले मैं खाने से पहले मैं उसको खिलाऊंगा, लेकिन यदि वो खाएगी इसका अर्थ ये नहीं कि मैं भी खा लिया। नो, मुझे भी, यदि मुझे भूख को मिटाना है तो मुझे भी खाना पड़ेगा। Somebody is praying for you, your mother is praying for you। मेरी माँ मेरे लिए प्रार्थना कर रही है, मेरे पिताजी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या मेरी पत्नी मेरे लिए प्रार्थना कर रही है, मेरा पति मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, मेरे बच्चे मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ओ मेरे नाना जी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी दादी मेरे लिए। That is not going to work for long time. Hallelujah. So when I go to pray, तो फिर आप कब प्रार्थना करोगे? तो आप कब वचन को पढ़ोगे? आप कब प्रभु की बातों में बढ़ोगे? जब आप कब परमेश्वर के करीब आएंगे? हालेलुया। ले रोमा शबा राहम। वो प्रार्थना कर रहे, इट्स गुड। वो यदि आपके लिए प्रार्थना कर रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो प्रार्थना करे इसका अर्थ ये नहीं है कि आप प्रार्थना ना करें। आप नहीं बढ़ेंगे वो बातों में, परमेश्वर में आप नहीं बढ़ोगे। हालेलुया। यू नीड टू मेडिटेट गॉड्स वर्ड। जैसे परमेश्वर की महिमा यदि प्रकाशमान होना है तो अंदर से हमें उन बातों को प्रकाशमान होना, परमेश्वर के वचनों के द्वारा वो प्रकाश आपके जीवन के द्वारा बढ़ते जाएगा। पीपल विल सी अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। और जब आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ेंगे तो लोग आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा को अनुभव करेंगे। यीशु के नाम। यू विल नॉट बी एन ऑर्डिनरी पर्सन। रामो शाठारी कांडालाबा दीरो माखालेब्रो मो शालाराबा। व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलोगे तो दिल से मुझे पता नहीं, आप जब बात कर रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत आशा मेरे जीवन में है। हालेलुया। When you keep hand and pray, जब आप हाथ रखोगे और किसी के लिए प्रार्थना करोगे, रेखो ताराबा शंदारी अंदालाबा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास करेंगे उनमें ये क्रियाएं रहेगी, या ये कार्य उनके जीवन में दिखेगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो जब निर्बल लोगों पर या बीमार लोगों पर हाथ रखेंगे, यीशु के नाम में वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। यस, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर नतानियल, praise the Lord. Yes, thanks for joining. Praise the Lord. Rama Shandariya Dalaba, Reko Namasekro Makaliya Dalabo Shandaraba. ये कार्य आपके जीवन के द्वारा होगी यीशु के नाम में, because it's the word of God says so. लेकिन ये बातों में बढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। हालेलुया। ये बातों में आपको बढ़ना है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रकाश मेरे जीवन के द्वारा दिखे, परमेश्वर की महिमा जो मुझ में है वो इस संसार पर प्रकट हो, you need to get into the word. आपको परमेश्वर के वचनों को अंगीकार करना बहुत जरूरी है। Praise the Lord. Hallelujah. When you believe God's word, जब आप हृदय में विश्वास करोगे वचन को, हालेलुया,
हालेलुया। ये यहाँ पर रहेगा तो कार्य नहीं करेगा। इसको जब हृदय में आप विश्वास करोगे, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, जो वहां पर आप विश्वास करते वचनों को, धन्यवाद यीशु, मैं विश्वास करता हूं हालेलुया कि जो संसार में है, आपके वचन में लिखा गया है कि उससे बड़ा मुझ में है। हालेलुया, आई एम कॉल्ड फॉर ग्रेट थिंग्स। प्रभु, मैं अलौकिक और अद्भुत कार्यों के लिए मैं चुना गया हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप विश्वास करोगे इन बातों पर, जब आप अंगीकार करोगे विश्वास कर कर, हालेलुया, यू नीड टू पुट इनटू एक्शन। यू नो, एक स्त्री जो 12 सालों से लहू बहने की बीमारी से, उसने सब कुछ किया, उसने सब कुछ किया अपने जीवन में। जहां जहां लोगों ने कहा वहां वहां वो गई, और जहां जहां वो जो भी डॉक्टर्स के पास जा सकते थे उस समय पर उसको जहां जहां जाने के लिए कहा गया, लोगों ने जहां जहां उसको जाने के लिए कहा वहां वहां वो गई, और उसने चंगाई के लिए सारी कोशिशें की, और वहां वचन में लिखा गया उसने सब कुछ अपने जीवन में खो लिया। सब कुछ, उसके पास जो कुछ था सारा धन खत्म हो गया, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने सुना, सुनकर वो घर पर नहीं बैठी। हालेलुया। टुडे मेनी पीपल आर इन दिस सिचुएशन। आज कई लोगों की स्थिति ये है, बोलते हैं कि मैं तो परमेश्वर पर बहुत विश्वास करता हूं, मेरा तो बहुत विश्वास है। इफ यू बिलीव गॉड, देयर शुड बी एन एक्शन। राखा शेके तेरी अंदाला। हालेलुया, हालेलुया। बी रैडिकल फॉर गॉड। हालेलुया। परमेश्वर के लिए यू नो हर समय हर बातों में खड़े रहे। डोंट बी कंफर्टेबल फॉर गॉड। जो लोग कंफर्टेबल रहते हैं वहां पर परमेश्वर कभी भी अपनी महिमा को, आश्चर्य कार्यों को आप देख नहीं पाओगे। हेलो, हालेलुया। वेयरएवर यू फील कंफर्टेबल, वहां कार्य नहीं दिखेंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, रिक्रो माका शाठा रे दो, हालेलुया, कम ऑन, तेरे बेटे को ले और तू कम ऑन गो और उसको मुझे तो बलिदान होकर दे दे। इट वाज नॉट इजी, बट ही टुक अ रैडिकल decision. Whatever God said, he obeyed and he went away. उसने तुरंत वो बातों को सुना और तुरंत वहां से निकला। हालेलुया, हालेलुया। मूसा के जीवन में भी हम देखते हैं, तो लॉर्ड आई कैन नॉट स्पीक, मैं बोल नहीं सकता, मैं बात नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। You need to be radical for God. ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। डोंट टेल गॉड। परमेश्वर को आइडियाज मत दो। दैट इज नॉट अ क्रिश्चियन लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर को आइडियाज मत दो, परमेश्वर को अपने प्लान्स को मत बताओ। परमेश्वर के प्लान्स को जानने की कोशिश करो। आपके जीवन के लिए जो उत्तम और अति श्रेष्ठ योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए बना कर रखा। हालेलुया। कम ऑन समबडी। हालेलुया। लेक्रो माका रेबो शांदारी अंदारबा। डोंट टेल गॉड, प्रभु मैं ऐसा करना चाहता हूं, तू मेरी सहायता कर। मैं ये करना चाहता हूं, तू मेरी सहायता कर। नो। परमेश्वर के बच्चे जो परमेश्वर के करीब रहेंगे, जो परमेश्वर के वचनों के अधीन रहेंगे, वो ये कहेंगे कि प्रभु मुझे बता आज क्या करना है। खुदा मुझे बता कि आज मैं क्या करूं तेरे लिए। खुदा आज के दिन के लिए कौन सी वो योजना तूने मेरे लिए बना कर रखा। हालेलुया। आई एम रेडी लॉर्ड, व्हाटएवर यू से। प्रभु तू जो भी कहेगा मैं वो करने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। दैट इज अ फेथ लाइफ। और जो भी वो कहता है, डोंट लुक फॉर रिसोर्सेस कि वो आएगा तो मैं जाऊंगा, मैं अकेला जाऊं क्या, वो रहेगा तो फिर मैं चलूंगा साथ में, ओ उसके लिए तो मेरे पास अभी कुछ है ही नहीं। नो नो, wherever God speaks, He will provide everything for you. जब परमेश्वर बोलता है तो वो सारी बातों को आपके लिए पहले से ही प्रबंध कर रखता है। हालेलुया। You don't have to worry. पूरा माशांदारा हंदारिया लाला, वो कहीं से भी प्रबंध करेगा, वो परमेश्वर बातों के लिए प्रबंध कर रख देगा। You just need to take a step of faith in action. आपको उन बातों में निर्णय लेना होगा। आपको उन बातों में निर्णय लेकर आपको एक कदम आगे बढ़ाना जरूरी है। नहीं तो आप सोचते रहेंगे मैं करूंगा करूंगा करूंगा, ओ करूंगा प्रभु, करूंगा प्रभु, करूंगा। नो 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 नो। प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। कई लोग प्रार्थना करते, प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी सहायता कर।
परमेश्वर आपकी सहायता तब तक नहीं करेगा जब तक आप विश्वास से कदम को आगे नहीं लेंगे। हालेलुया। somebody, is anybody listening to me? Hello. जब तक आप विश्वास से कदम नहीं लोगे, until and unless you take a step of faith in obedience for whatever God has said. It is not your idea, it's a God's purpose, it's a God's idea, because God is speaking to you. क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना और परमेश्वर की योजना परमेश्वर आपको बता रहा है, और आप जब उसके अधीनता में आप विश्वास से कदम को लेते हो, तब आप परमेश्वर की महिमा को देख पाओगे। हालेलुया। रेकोंदाराबा शांडाले हेंटेरियम दाराबा। हालेलुया, हालेलुया। Don't pray that Lord fill me with your strength, fill me with। आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप विश्वास से कदम को आगे बढ़ा ही नहीं रहे। वो स्त्री भी जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने सुना तो अपने घर पर नहीं बैठी, लेकिन उसकी स्थिति वहां पर लिखा गया है कि वो बहुत निर्बल थी। From 12 years she was suffering। 12 सालों से वो निर्बलता उसके शरीर में थी। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई अच्छी स्थिति में होगी। उसकी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं थी कि वो वहां पर आ सके जहां प्रभु यीशु मसीह है। आज बहुत लोग परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर तुम मेरे लिए जो भी है, मेरे लिए इधर तू जो भी करेगा, मैं उसको करने के लिए मैं तैयार हूं। प्रभु तू मेरे लिए यहीं पर कर, प्रभु मैं वहां जाना चाहता हूं, मेरे लिए कर, प्रभु मैं यहां जाना चाहता हूं, मेरे लिए कर। नो, वो परिपक्वता नहीं है, वो परमेश्वर में परिपक्व नहीं है, इसलिए इस प्रकार से परमेश्वर को बोलते हैं। लेकिन जो परिपक्व है, जो विश्वास में है, जो वचनों में है, जो आत्मा में है, वो ये कहेंगे प्रभु तू जहां कहीं भेजेगा मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। प्रभु तू जहां पर भी मुझे ले जाना चाहता है, wherever you want to take me Lord। Those are mature in their faith life, those who believe God's word, those who are led by the Spirit, they say Lord wherever you want to take me, wherever you lead me I will go। क्योंकि चाहे घोर अंधकार से भी मैं होकर चलूं, लिब्रो माशाकारा हंदरियालाराबा, मेरी कोई हानि नहीं होगी यीशु के नाम में, क्योंकि वो अंधकार में भी वो मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। उसका प्रकाश मेरे जीवन में रहेगा। हालेलुया। वो मुझे राह को बताएगा। हालेलुया। खुरमा ले रोमो शालाराबा हंदरियांदानाबा। Come on church, get excited my dear brother and sister। Don't just be excited, but I want you to take a step of faith in your life wherever you are stuck, wherever you are stagnant। हालेलुया। आप सिर्फ उत्साहित ना हो इन बातों को सुनकर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की बातों में जो भी खुदा ने आपको कहा, वो बातों में विश्वास से कदम को लीजिए। सिर्फ उत्साहित होना काफी नहीं है ये समय पर, सिर्फ उत्साहित होने से काफी नहीं है ये समय, सिर्फ उत्साहित होने का नहीं है। उस उत्साह में, उस विश्वास में कदम को आगे लेकर हमें बढ़ना जरूरी है। हालेलुया। We need to move forward, we need to move forward। राबा शेकोरी खंदालाबा। जब मूसा और इजरायली लोग जब लाल समुद्र के सामने खड़े थे और पीछे से सेना और आगे समुद्र, कहां जाए? फिर कुड़कुड़ाना शुरू किए। Don't be a person who's grumbling always। Don't be a person always who's grumbling। हालेलुया। वो स्वभाव को लेकर मत रहिए। If that is your nature or that is your character, just leave it today in Jesus name। यीशु के नाम में वो कुड़कुड़ाना, यदि आपका स्वभाव कुड़कुड़ाने का स्वभाव है, मैं यीशु के नाम में आपसे विनती करता हूं, वो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता। वो बातों को छोड़ दे यीशु के नाम में। हालेलुया। डोंट बी अ पर्सन हु इज ग्रम्बलिंग ऑल द टाइम। वो व्यक्ति होकर मत रहिए कि हर समय कुड़कुड़ाते रहे, हर बातों में कुड़कुड़ाते रहे, हर बातों में, हर परिस्थिति में कुड़कुड़ाते रहे। नो, वहां पर भी लोग वही कर रहे थे कि पीछे से शत्रु और आगे देखेंगे तो पानी। और परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में जो है उस लाठी को तो आगे कर। हालेलुया। गॉड डिडंट कम देयर। परमेश्वर वहां पर नहीं आया। हालेलुया। परमेश्वर वहां पर उतर कर नहीं आया। If anything God wants to do,
You need to take a step of faith. अगर कुछ भी आप अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा देखना चाहते, take a step, विश्वास से कदम को आगे लीजिए. Hallelujah. God didn't come there. Oh, this is the situation. Oh, ये परिस्थिति है, क्या होगा? परमेश्वर वहां पर उतर कर नहीं आया. परमेश्वर ने सिर्फ बताया कि क्या करना है. Hallelujah. परमेश्वर ने सिर्फ गाइड किया. God just told him what to do. परमेश्वर ने उसको बताया, अपने सेवक को बताया कि क्या करना है. परमेश्वर आपको बताएगा. अगर बताने के बाद भी आप वही खड़े रहेंगे, आप बोलेंगे कि देखूंगा मैं, अगली बार देखूंगा, अगली बार जब परमेश्वर बोलेगा मैं करूंगा. कितने अगली बार, कितना समय और कितना समय और कितना समय परमेश्वर से दूर रहोगे, और कितना समय परमेश्वर के वचनों से दूर रहोगे, और कितना समय परमेश्वर से संगति में दूर रहोगे, और कितना समय प्रार्थना से दूर रहोगे, और कितना समय प्रभु से, वो जो आपसे इतना प्रेम किया, जो अपने पवित्र लहू को और संपूर्ण रीति से अपने आप को समर्पित कर दिया, उससे और कितना समय आप दूर रहोगे. हालेलुया. दिस इज द टाइम. ये वो समय है मेरे प्रिय भाई और बहन. हालेलुया. ये वो समय है. ये वो समय है निर्णय को लेकर विश्वास से कदम आगे बढ़ाइए. डोंट लुक फॉर रिसोर्सेस. गॉड विल प्रोवाइड एवरीथिंग. व्हेन गॉड लीड्स यू, Where God leads you, He will provide everything for you. जहाँ परमेश्वर आपको चलाएगा, वहाँ पर वो सारी बातों को प्रबंध करेगा. बिल्कुल आपको डरने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है यीशु के नाम में. हालेलुया. उस स्त्री घर पर बैठी नहीं रही. यीशु मसीह अद्भुत कामों को करता है. वो अपने शरीर में निर्बल थी पर घर पर नहीं बैठी. हालेलुया. People are very comfortable. लोग बहुत comfortable life को चाहते हैं. No, if you want to do something for God, if you want to live for God, अगर आप परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, और आप यदि परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन के द्वारा प्रकट होना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रकाश जो मुझ में है वो प्रकट हो, अन्य जातियां जाने, राजा या अधिकारी लोग जाने, और वो मेरे पास आए, तो आपको उस परिस्थिति से उठना जरूरी है. You must arise. आपको उठकर प्रकाशमान होना जरूरी है, और ये आपकी जिम्मेदारी. Don't wait for God to do something. वो स्त्री घर पर अपनी बैठी नहीं रही. वो जहां प्रभु यीशु मसीह आया, उस स्थान पर वो आ गई. वो 12 सालों से जो लहू बहने की बीमारी से अपने शरीर में संपूर्ण रीति से निर्बल हो गई थी, परंतु वो घर पर नहीं बैठी. जहां प्रभु यीशु मसीह था वहां पर आई, और वहां पर बहुत भीड़ है. वहां पर बहुत भीड़, और उस भीड़ में से उसने ये विश्वास किया, यीशु मसीह से तो मैं मिल नहीं सकती क्योंकि भीड़ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ. उसने विश्वास किया. हालेलुया. उसने विश्वास किया कि यदि मैं प्रभु के उस वस्त्र के, अगर वो कॉर्नर को, यदि परमेश्वर के वस्त्र को भी यदि मैं पकड़ लूं, if I can touch the hem of his garment, I will be healed. मैं परिपूर्ण रीति से मैं चंगी हो जाऊंगी. हालेलुया. उसने विश्वास किया, और विश्वास कर वो घर पर नहीं बैठी, वो अपने कदम को आगे बढ़ाई. हालेलुया. What are you waiting for? यदि आपके जीवन में आप कोई बातों के लिए अभी भी रुके हैं, कि ये होगा तो मैं कुछ करूंगा, ऐसा होगा तो मैं सोचूंगा, ऐसा अगर होगा तो मैं शायद प्रभु के लिए कुछ कर पाऊंगा. No, nothing is going to work that way. उस प्रकार से कुछ भी नहीं होगा. आप जैसे सोच रहे हैं, आप उसी स्थान में बैठे रहेंगे. 2020 नहीं, 2030 भी अगर आ गया, by the way, यदि 2020 के जगह 2030 भी आ गया, तो आपका उम्र बढ़ेगा, परंतु आपकी स्थिति नहीं बदलेगी जब तक आप विश्वास में कदम नहीं लोगे. हालेलुया. टेक अ स्टेप ऑफ फेथ. You know, इसके लिए और एक बात है कि be connected with the people who are in faith, who are walking in faith. इसके लिए और एक बात भी बहुत जरूरी है. उन लोगों से मिलकर, अविश्वासी लोगों से आप मिलकर रहेंगे और आप विश्वास को अपेक्षा करेंगे, कभी नहीं होगा. हालेलुया. सबसे प्रथम परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की संगति, प्रार्थना, प्रभु की आराधना. We have an opportunity. हमारे पास मौका है, उस मौका को मिस मत करो. By any reason,
बाय एनी रीजन, कोई भी कारण से उस मौके को मिस मत कीजिए। कम ऑन, राइज अप। उस स्थिति से उठ जाए मेरे प्रियो। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु की महिमा आपके द्वारा प्रकाश होना है, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का प्रकाश मुझसे प्रकट हो इस पृथ्वी पर, अन्य जातियों के बीच में, इस सारी पृथ्वी जहां जहां हर जगह हर राज्य में अंधकार छाया हुआ है, और आप चाहते हैं कि प्रभु के लिए रोमो शाकाली अंदरवा, अगर आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, राइज अप फ्रॉम दैट प्लेस ऑफ स्टैग्नेंस। उस रुके हुए स्थिति से उठ जाओ, उठ जाओ। आप जब खड़े हो जाएंगे, आप एक कदम को लेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। और ये स्त्री भी वहां पर आई और उस भीड़ में उसने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह तो मिलना तो मुश्किल है क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है, और उसने सोचा कि मैं इसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसी प्रकार से उसने विश्वास से कदम लिया। उसने वो जो आशा उसमें थी, उन बातों को विश्वास कर कर उसने कदम लिया। हालेलुया, she took a step of faith and she went to Jesus and she touched his clothes। और वो वहां जाकर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों को उसने स्पर्श किया और तुरंत वो चंगी हो गई। हालेलुया, इमीडिएटली। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करे, हालेलुया, telling you, don't be a person who is grumbling all the time। अगर आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, if you are a person who is grumbling, हर समय आप कुड़कुड़ा रहे हो, उस भाव को छोड़ दीजिए, परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया, it is not from God। Don't compare your life with somebody। अपने जीवन को दूसरों से तुलना मत कीजिए। जो भी प्रभु ने आपके लिए एक प्रत्येक योजना रखा, उस योजना में बढ़िए, उस योजना को जानिए, उस योजना में परमेश्वर आपको चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। राइज अप, अराइज एंड शाइन, अराइज एंड शाइन, अराइज एंड शाइन। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, अपने स्थानों में, अपने जीवन की उस स्थिति से प्रकाशमान हो जाए। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। God wants to do amazing things through your life and my life। परमेश्वर आपके जीवनों के द्वारा वो अद्भुत कार्य को करना चाहता है। Don't wait, और मत रुकिए, और राह मत देखिए, और देखते मत रहिए। हालेलुया, you're already blessed, you're a child of God। आप परमेश्वर की संतान हैं, वो विश्वास आप में है, उस स्थिति से खड़े हो जाइए। जो भी परमेश्वर कह रहा है, not good idea, God's idea। Follow God's idea। अच्छी, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं कर रहा हूं। Don't do that, brother, sister। परमेश्वर की योजना जानिए। अगर आप परमेश्वर की योजना नहीं जानते, जो लोग परमेश्वर की योजना में है, उनके साथ कनेक्टेड रहिए। Until you understand, जब तक आपको वो बातें समझ में नहीं आती, जब तक परमेश्वर के उद्देश्य आपको पता नहीं चलता, पूछिए। Ask and do things। पूछिए कि ये करना परमेश्वर की योजना है या नहीं, क्या ये बातें मुझे करना चाहिए या नहीं। जब आप उन बातों के निर्णय नहीं ले सकते, आप ये जान नहीं सकते कि ये परमेश्वर की योजना है या मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, तो वो लोगों से कनेक्टेड रहिए। हालेलुया, जो आपको प्रोत्साहित करेंगे, जो आपको सही मार्ग में चलाएंगे। Praise the Lord, God's word is important in your life। परमेश्वर का वचन, उसकी अधीनता जरूरी है। यदि आप बोलेंगे आज सुनकर मैं कल करूंगा, मैं परसों देखूंगा और लॉकडाउन के बाद मैं करूंगा, नो। Disobedience, delayed obedience is disobedience। यदि आप बाद में करने की सोच रहे हो, अनाज्ञाकारिता में प्रभु की आशीष आप अपेक्षा नहीं कर सकते। God wants obedient people। परमेश्वर उसके वचनों के अधीन रहने वाले लोगों को अपेक्षा करता है, उन्हीं को वो आशीषित करेगा। हालेलुया। Whenever people they repent, जब भी जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध कार्यों को करते हैं, लेकिन जब वो जानकर आकर पश्चाताप कर कर परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हो, कहते हैं कि प्रभु तू मुझे क्षमा कर, तो निश्चय परमेश्वर उनको क्षमा करेगा और वो परमेश्वर प्रेम करेगा। हालेलुया। उनको वो परमेश्वर चलाएगा, उनके जीवन में परमेश्वर कार्य को करेगा।
But if you know that you are away from God, लेकिन आप जानते हैं प्रभु की योजना से आप दूर है और फिर भी आप वैसे ही रहना चाहोगे, आप परमेश्वर की आशीष को नहीं पा सकते। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, इफ यू नो दैट यू आर वॉकिंग अवे, यदि आप जानते हैं कि मैं परमेश्वर के योजना के विरुद्ध चल रहा हूं, तो आज प्रभु ने आपको मौका दिया, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। निश्चय जब आप परमेश्वर के सामने पश्चाताप करोगे, जब आप कहोगे कि प्रभु मुझे तू क्षमा कर, मैंने तेरे विरुद्ध इन कार्यों को किया है, मैं तेरी योजना को जानकर भी प्रभु मैं अपनी मर्जी से इन कार्यों को किया, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, तो निश्चय वो परमेश्वर दयालु है, प्रेमी है, वो आपको क्षमा करेगा और उसके बाद से परमेश्वर के साथ चलना शुरू कीजिए, आधीनता में चलना शुरू कीजिए। अगर आपको नहीं पता, वी आर देयर टू हेल्प यू। यदि आपको नहीं पता तो हम हैं आपकी सहायता करने के लिए। बी कनेक्टेड, गेट कनेक्टेड, हालेलुया, गेट कनेक्टेड, ताकि आप प्रभु की योजना में चल सके। वी आर देयर सो दैट यू कैन फुलफिल द पर्पस ऑफ गॉड। हम हैं ताकि आप परमेश्वर की उस योजना को परिपूर्ण करने के लिए हम आपकी सहायता करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, वी आर देयर टू हेल्प यू। आधीनता, obedience to God's word is very important. Every good idea is not God idea. जो भी आपको अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लग रहा, मैं कर रहा हूँ, please don't do that. Know what is God's guidance. Know what is the will of God. परमेश्वर के उद्देश्य क्या है, जानकर उन बातों को कीजिए। जो भी प्रभु ने आपको, खुदा ने आपको रिसोर्सेज दिया है, don't waste it. I like it so I do it. जो भी परमेश्वर ने आपको रिसोर्सेज दिया है, जो भी परमेश्वर ने आपके हाथों में जो भी दिया है, उसको वेस्ट मत कीजिए कि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं। डोंट डू इट माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। नो इज इट द पर्पस ऑफ गॉड और नॉट, कि वो परमेश्वर का उद्देश्य इच्छा है या नहीं, ये बातों को जानिए मेरे प्रिय भाई और बहन, जानकर उन बातों को कीजिए। अगर आप नहीं जानते, आपको पता नहीं, हम हैं आपकी मदद करने के लिए, ताकि आप उस परमेश्वर के उद्देश्यों को जान सके। वी आर देयर टू प्रे फॉर यू एंड टू लीड यू एंड गाइड यू इन द राइट वे wherever God leads you. जहां पर भी परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, परमेश्वर की योजना को जानकर आपको चलाने के लिए, हम आपकी मदद करने के लिए हम तैयार हैं। We are there to help you. Hallelujah, Hallelujah. Don't wait. परमेश्वर की योजना को जानकर भी रुके मत रहिए। Don't wait for tomorrow. कल के लिए रुके मत रहिए। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं बहुत प्रभु का कार्य करूंगा। Don't wait. Get connected to the right people, those who are in faith, those who are living the faith life. आप अविश्वासी लोगों के साथ रहकर आप बोलेंगे मैं विश्वासी जीवन जीना चाहता हूं, नहीं होगा। इसलिए आपको विश्वासी जो विश्वास करते हैं उनके साथ आपको कनेक्ट होना जरूरी है। Hallelujah. When you get connected with the faith people, so always those words will encourage you. वो बातें आपको प्रोत्साहित करेगी, ताकि आप परमेश्वर के सही उद्देश्यों को आप जानकर प्रभु की महिमा के लिए आप चल सके। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 60वां अध्याय 1, 2, 3 आयत, मैं चाहता हूं कि आप फिर एक बार आप उन बातों को पढ़िए, आप मनन कीजिए। जो परमेश्वर के अद्भुत उद्देश्य है, वो बातें आपके जीवन में परमेश्वर परिपूर्ण करने पाए। We are there to help you all the time. और हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम आपके लिए हर समय तैयार है, आपको परमेश्वर की योजना में चलाने के लिए। Praise the Lord. Not what we want. मुझे क्या अच्छा लगता है, नहीं, परमेश्वर की योजना। What God's will. What is the purpose of God for your life? परमेश्वर की योजना आपके लिए, परमेश्वर के उद्देश्य आपके जीवन के लिए, वो बातों में आपकी अगुवाई करने के लिए हम तैयार हैं। Praise the Lord. Prayerfully we will lead you and guide you. प्रार्थना पूर्वक हम आपको अगुवाई करेंगे, प्रार्थना पूर्वक हम आपकी अगुवाई करेंगे, हम आपको बताएंगे परमेश्वर की योजना क्या है। Until you grow to that level, जब तक आप वो बातों में अपने परिपक्व नहीं होते, तब तक हम आपकी मदद करेंगे, ताकि आप विश्वास में, प्रभु की योजना में आप बढ़ते जाएं। Praise the Lord. परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपके जीवन को आशीषित करें। May the Lord bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। I want you to share this on your Facebook. मैं चाहता हूँ कि आप ये बातों को, जो भी खुदा ने, it is prophetic and many people are going to be blessed and being encouraged through this word. इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपने फेसबुक में या व्हाट्सएप में wherever you can share it, जहां पर भी आप इसको, इन बातों को शेयर कर सकते हैं, so that they can be encouraged through God's word, ताकि वे लोग जो सुनेंगे वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा प्रोत्साहित हो सके।
Amen. Amen. I believe you will do it. I believe you will do it. Or WhatsApp or Facebook or whatever medium you have. जो भी माध्यम आपका है दूसरों को शेयर करने का, आप शेयर कीजिए इन वचनों के द्वारा। आप जैसे आशीषित हुए हैं, जैसे खुदा ने हमें आशीषित किया, वैसे ही और भी लोगों को आशीषित कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेको राबा शाका लीबो राबाला दुरियम तनमा Diko rikaraba shandari kandarabo sekro makariyandanama. Diko rikaraba shandari antarabo shandari kanamana duriyantalaba. Lekro makaliyandarabo shandari baradariyantarabo. Lekro makaliyandarabo shabarabala duriyantarabo. Lekro makalebro shandari kandaraba. We thank you Holy Ghost. We thank you Holy Spirit for your word. पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ के लिए और आपके वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Lord, thank you for your power and your anointing and for your word. I pray the spirit of obedience upon every child of God. परमेश्वर पिता आधीनता, the spirit of obedience, आधीनता यीशु मसीह के नाम में, वचनों की आधीनता यीशु मसीह के नाम में हर एक के जीवन पर रिलीज करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. Lord, every person be obedient to your word, to your voice. Hallelujah. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, bless every individual with the spirit of obedience, Lord. Rama Shekiri Andalaba. Diko Rama Sekro Makari Andalabo. Whatever things are taking them away from obedience or from your word, परमेश्वर पिता जो भी बातें हैं आपके वचनों के अधीनता से, आपके उपदेशों से जो बातें उन्हें दूर लेकर जाती है, आपके उपदेशों से उन्हें भटका देती है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उन सारी अंधकार की दुष्ट की बातों को हम यीशु के नाम में उनके जीवनों को छोड़कर निकल जाने की आज्ञा देते हैं। Out in Jesus name. I command you in the mighty name of Jesus. Get out. Leave them right now in Jesus name. Hallelujah. They believe that Jesus is their God. वो विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनका परमेश्वर है और शैतान तुझे कोई अधिकार नहीं है उनके जीवनों पर। यीशु के नाम तेरे सारे प्रभाव को यीशु के नाम में उनके जीवन से परिपूर्ण रीति से हम नष्ट कर देते हैं। परमेश्वर पिता फिर एक बार आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता यदि कोई निर्बल Lord, as we have every Friday the healing service, परमेश्वर पिता जैसे शुक्रवार को शंगाई और छुटकारे की सभा होती है, परमेश्वर पिता आत्मिक रीति से आपके वचनों के द्वारा हर एक को आपने परिपूर्ण छुटकारा दे दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। Hallelujah. Let them be obedient to your word, O God. And I pray in the mighty name of Jesus, यदि कोई शारीरिक निर्बलता में है, यीशु मसीह के सामर्थी और अलौकिक और अद्भुत नाम में अभी और इसी समय हम चंगाई को रिलीज करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Let them be healed in Jesus name. Let them be healed in Jesus name. Let them be healed in Jesus name. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगाई को रिलीज करते हैं पिता। Hallelujah. Let them be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Rama Shekiri Andalaba. That every sickness may leave them in Jesus name. यीशु के नाम में वो निर्बलता, वो बीमारी, वो चाहे किसी भी कारण से हो, यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ, प्राण आत्मा देह को अभी और इसी समय छोड़ दे उनके जीवन में। Out of them in Jesus name. Thank you Lord. Bless every individual. I speak healing over their lives, in their spirit, soul and body. यीशु के नाम में शंगाई को रिलीज करते हैं और परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्राण आत्मा और देह में आपकी चंगाई को रिलीज करते हैं पिता, परिपूर्ण चंगाई और रिहाई। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी अलौकिक सामर्थ और आपके वचनों के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए। सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हैं। धन्यवाद यीशु, सारी बातों को आपके समक्ष समर्पित करते हैं। धन्यवाद यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं और सब मिलकर कहे आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और जितने पवित्र लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन सभी के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे, होती रहे। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सभी को बहुत आयत से आशीषित करे और इट्स अ ग्रेट टाइम, बहुत ही अद्भुत समय परमेश्वर ने हमें दिया है और सारी महिमा परमेश्वर को हम देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। May the Lord bless you all.